Good morning, students. Today we are going to start a new chapter. This is chapter number 19 in your book, Prepositions. Prepositions का थोड़ा बहुत previous knowledge आपको होगा. So let's continue it. Now, before I start with the definition, I want you to understand this simple example. The ball is in the basket. Will you be able to identify the preposition in this sentence? Just think. The ball is in the basket. Which is the word that is preposition? Yes. I don't know how many are correct, but in word is our preposition. Word in जो है वो हमारे sentence में preposition है. Now, in word दो चीज़ों को connect कर रहा है. It is connecting two objects or it is linking two objects. Relationship establish कर रहा है with between two objects. The first one is the ball and the another one is the basket. बॉल और बास्केट के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है द वर्ड इन और द वर्ड विच इज preposition. So let us understand the definition. A preposition is a word that links a noun or a pronoun to other words in a sentence. I'm repeating again. A preposition is a word that links a noun or a pronoun. Noun या फिर pronoun को वो link करते हैं. They link or they establish a relationship. एक relationship establish करते हैं वो दो objects के बीच में. वो object either noun हो सकते हैं या फिर वो कोई pronoun हो सकता है और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं वो बाकी वर्ड्स के साथ जो कि एक सेंटेंस में दिए जाते हैं. दे एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप अमंग द नाउन with the other words which are given in a sentence. So let us understand few prepositions using some simple objects. अगर आपके घर में बास्केट और एक बॉल है और any of the object if you have with toy है तो आप लेके आ सकते हैं. You can practice with me while watching the video. So here is a basket and a ball. अगर इन दोनों के बीच में हम एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे यूजिंग सम प्रीपोजिशन वर्ड्स. नाउ व्हेन आई कीप दिस बॉल इन द बास्केट, अगर मैं बोलूँ द बॉल इज इन द बास्केट, इन मतलब अगर आप समझ पाए तो बॉल जो है वो बास्केट के अंदर है. ठीक है. नाउ इन के लिए ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं. माई पेन इज इन माई पाउच. माई पेन इज इन माई पाउच. आपने देखा मैंने अपना पेन जो है वो पाउच के अंदर रख दिया है. तो पाउच के अंदर है वो पाउच में है. ठीक है. द बॉल इज इन द बास्केट. द बॉल इज इन माई पाउच. नाउ एक बॉल हमने रखा है बास्केट के नीचे. द बॉल इज अंडर द बास्केट. ठीक है. द बॉल इज अंडर द बास्केट. राइट. वो नीचे था तो अंडर हो गया. नाउ द बॉल इज ऑन द बास्केट. द बॉल इज ऑन द बास्केट. वी आर यूजिंग द सेम एग्जाम्पल्स एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिफरेंट prepositions. ठीक है. The ball is in between the basket and the pouch. The ball is in between. In between का मतलब बीच में है एक बास्केट और एक पाउच के. ठीक है. Now please open page number 91 in your book. Preposition chapter number 19. The book is on the desk. These are some examples showing prepositions. So on is our preposition. The book is under the desk. Under preposition मतलब नीचे. The book is near the desk. Near हमारा preposition है. That means पास. जैसे आप लोग एक दूसरे के साथ क्लास में पास में बैठते हैं. The book is in the desk. book जो है वो डेस्क में है. The book is beside the desk.
बिसाइड जो है बगल में होता है, ठीक है, जस्ट बगल में जो हमारे बैठते हैं. नियर मतलब होता है पास, बिसाइड मतलब होता है बगल में. द बुक इज़ अबव द डेस्क, बुक जो है टेबल के ऊपर है. द बुक इज़ बिलो द डेस्क, बिलो मीन्स नीचे. Now, each of the above sentences contain a word that shows the relation between the book and the desk. I told you preposition जो हैं दो चीज़ों के बीच में relationship establish करते हैं. The noun or pronoun that follows a preposition is said to be governed by a preposition and is called its object. यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है हमारा सेंटेंस में और एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और इस सब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है प्रेपोजिशन. ओके, नाउ हियर आर मोर एग्जांपल्स. ही लिव्स नियर अस, वो हमारे पास रहता है. द लेटर इज फ्रॉम हिम, वो लेटर उससे है. वो दिस लेटर इज फ्रॉम हिम, फ्रॉम मतलब किसी के द्वारा, ठीक है. देयर इज अ वॉल अराउंड इट, कोई एक चीज़ है जिसके आसपास चारों तरफ क्या है, वॉल है. ओके, लाइक हमारे स्कूल के चारों तरफ एक बाउंड्री है, सो चारों तरफ के लिए हम क्या बोलते हैं, राउंड. ही केम विद मी, विद हमारा preposition मतलब मेरे, किसी के साथ. आई डू नॉट बिलीव इन देम, मैं उनमें विश्वास नहीं करता हूँ. तो इन इज अगेन आवर preposition. नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ prepositions. Come to the next page, page number 92. Now, the prepositions which you have to study are, first one is preposition of time. Preposition of time. Time means ऐसा preposition जो time बताता है. Okay. Next one is, आप मार्क कर सकते हैं लाइक मी, preposition of place, यानी कोई भी preposition जो कि place को डिस्क्राइब करता है, जगह. थर्ड वन इज preposition of movement. मूवमेंट मतलब किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना. सो यहाँ मूवमेंट वो डिस्क्राइब करता है ऑफ पीपल, लोगों का मूवमेंट बताता है, या फिर किसी थिंग का मूवमेंट, मतलब एक चीज़ कौन से किस जगह जा रही है उस मूवमेंट को बताता है. ओके, एंड द लास्ट इज preposition ऑफ डायरेक्शन, यानी जो मूवमेंट है वो कौन सी दिशा में है, कौन से डायरेक्शन में आप. So these are the four prepositions which you have to study. Again, I'm repeating. Preposition of time. Tell us how long or when an event took place. यानी कितनी देर के लिए या फिर कब, when an event took place, कितनी देर के लिए वो एक्शन हुआ है और कब हुआ है. Preposition of place. Tell us where, कहाँ पे जो है वो इवेंट हुआ है. Preposition of movement. It tells us about the movement of people or thing. Movement का मतलब एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होना, जाना. Preposition of direction, यानी डायरेक्शन मतलब दिशा, कौन सी दिशा में वो इवेंट जो है वो हो रही है. ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट वन इज preposition of time. My grandfather was born during World War II. मेरे ग्रैंडफादर पैदा हुए थे कब, एक टाइम पीरियड बताया है. ड्यूरिंग जो है हमारा preposition है, वो बता रहे हैं कि मेरे ग्रैंडफादर कब पैदा हुए थे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान पैदा हुए थे. आई हैव नोन हर सिंस क्लास 1. आई हैव नोन हर सिंस क्लास फर्स्ट, मैं उसे जानता था क्लास फर्स्ट से. सो अगेन सिंस वर्ड जो है यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में ग्रैंडफादर और वर्ल्ड वॉर 2 का इस्टेब्लिश हो रहा है रिलेशनशिप. यहाँ पे पैदा होने का टाइम बताया गया है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 है. आई हैव नोन हर सिंस क्लास फर्स्ट, यानी क्लास फर्स्ट से, अभी वो क्लास फर्स्ट में नहीं है, मैं उसे जानती थी क्लास फर्स्ट से. सो एक लंबा ड्यूरेशन है जब से मैं उसे जानती हूँ. सो यहाँ पे सिंस वर्ड है हमारा preposition which shows or which tell the time of event when that took place. Next is
नाउ मैंने यहाँ पे कुछ prepositions आपके लिए लिखे हुए हैं फॉर टाइम के लिए, लाइक आफ्टर, बिफोर, फ्रॉम, सिंस, ड्यूरिंग. दीज आर ऑल prepositions ऑफ टाइम. preposition ऑफ प्लेस. नाउ preposition ऑफ प्लेस जो है बहुत सिंपल है. आप लोगों ने ये सारे prepositions ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. जगह बताते हैं. जैसे आपने अभी वीडियो में देखा था, द बुक इज़ ऑन द टेबल. यहाँ पे शो हो रहा है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है बुक एंड टेबल का. बुक कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है. द फ्लावर्स आर इन द गार्डन. फ्लावर्स कहाँ पर हैं? दे आर इन द गार्डन. द फ्लावर्स इन द गार्डन आर वेरी प्रिटी. फ्लावर्स जो हैं कहाँ पर हैं? गार्डन में हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं. सो फ्लावर्स एंड गार्डन का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है एंड वी हैव यूज्ड द preposition इन. ठीक है. नाउ लेट्स सी. ऑन, एट, इन, बाय. These are all prepositions of behind, in front of, above, over, under, below. These are all prepositions of place जो जगह बताते हैं. Next is prepositions of movement. Movement मतलब I told you like when you go from your home to school, वो आपका एक movement है. आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं. So the train passed through the tunnel. ट्रेन और टनल का एस्टैब्लिश हो रहा है रिलेशनशिप. ट्रेन कहाँ से गुजर के गई है? टनल में से गुजर के गई है. सो मूवमेंट शो हो रहा है विद द वर्ड, विद द प्रपोजिशन थ्रू. वी हैड टू वॉक अराउंड द बाउंड्री ऑफ द फील्ड. अराउंड, हमें जो है एक बाउंड्री के इर्द गिर्द चारों तरफ जो है वो चलना पड़ा. सो अगेन वी आर शोइंग द मूवमेंट. हम चल रहे हैं, ये हमारा मूवमेंट है जो हम किसी फील्ड के चारों तरफ मूव कर रहे हैं. नेक्स्ट इज preposition ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन यानी जो भी इवेंट है वो कौन सी दिशा में हो रहा है. सो वी वॉक्ड टूवर्ड्स द मेन रोड. हम मेन रोड की तरफ चले. टूवर्ड्स. दे स्वैम अक्रॉस द रिवर. वो तैर रहे थे. अक्रॉस द रिवर मतलब रिवर को पार करते हुए. ठीक है. सो दीज आर ऑल prepositions ऑफ डायरेक्शन, मूवमेंट, प्लेस एंड टाइम. सो ये टाइप्स हैं जो आपने लर्न करने हैं.